You are spoiling your time. You are spoiling your mental energy. You are spoiling your common sense. You are spoiling your street smartness. You are spoiling your sharpness of your intelligence. You are spoiling your attitudes. And most importantly, you are spoiling your presentation power. ये सभी कुछ बिगड़ जाता है because of over exposure to social media. एक गर्व होना चाहिए कि मुझे जो काम का है वो मैं पूर्ण उपयोग करूंगा सोशल मीडिया में. थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लूंगा, लेकिन दिस इज माई लिमिट, माई टाइम लिमिट ऑन सोशल मीडिया. बाकी वो तो समंदर है या ना. हम सभी को पता है कि लाल बटन को एक बार प्रेस किया, लाल बटन मतलब YouTube, एक बार टच किया फिर 1.5-2 फीट दूरी होता है, दूसरी बार टच करते करते 2-2.5 घंटे चले जाते हैं. The first time that you see at the wall clock in your house after you first touched the red button and started watching YouTube's videos, it's like 1.5 hours, isn't it? है ना? Yes. आपकी एनर्जी बहुत चली जाती है. तो आपकी उम्र है कंजर्व करके एक अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे, तो ये सब चीजें तो आपको गिफ्ट में मिलेंगी. डोंट आस्क फॉर I-15 और I-16 टू योर पेरेंट्स. कारकिर्दी ऐसी बनाए, प्रोफेशनल करियर ऐसा बनाए, ऐसी फर्म खोले कि आपको I-15 I-16 तो हर बर्थडे में गिफ्ट में मिलने चालू हो जाए. स्टूडेंट्स है ना, आप develop your caliber. Don't run after I-15 and I-16 and beg with your parents, daddy लेके दो, मम्मी लेके दो. No, I want to develop my caliber. I'll have patience another 5-7 years, 8 years, but I'll develop my caliber to that extent that iPads and iPhones will become a part of my birthday or anniversary gifts. ये प्राइड से जीना है. In the 14th century, King Louis in France was overthrown by the people, and thereafter it started democracy there in France. सबको मार दिया, everybody in the royal family was killed by the people. छोटा लड़का था. People felt that we must not kill such a small child. He's innocent. He doesn't know anything about anything happening around him. पकड़ के ले गए in the jungles. They knew that he was a royal blood. मार तो नहीं सकते थे, मानवता थी, तो उसको गंदी आदतें डाल के बिगाड़ने का प्रयत्न किया. When he was in his teenage, he grew up in his teenage and as a youngster, सभी प्रकार की गंदी आदतें उनको पड़ जाए, इस प्रकार का प्रयत्न लोगों ने किया ताकि he no more feels that pride that I am from the royal family. He himself doesn't feel eligible to sit on the throne. He never claims for it in future. तो सभी प्रकार की ऐसी आदतें डालने का प्रयत्न किया. He did not touch anything. He did not touch liquor. He did not touch any woman. He did not touch the gambling cards. He did not touch illicit money. फिर सभी ने कहा कि यार 3-4 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं. These are the things people love. Yes. These are the things people crave for. And you are getting it free. And you are not even looking at it. तब ये 10-12 साल का लड़का था, उसने कहा, I cannot do what you ask of me. And I cannot look at such things because I am destined to become the king of France. ये प्राइड होना चाहिए कि I cannot touch YouTube. I cannot touch Netflix. I'm destined to be a cost accountant student of the top cadre and open up a firm which will have more than 1,000 clients. ये प्राइड होना चाहिए. बात में कभी भी हंसते हंसते खोल दे, बैठे बैठे खोल दिया कोई भी ऐप, you are destroying your own life. And why are you following somebody on Instagram? Why are you following?
ठीक है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, कोई गाता है, यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग। उसके प्रिंसिपल्स आप सीख लो, उसके प्रिंसिपल्स सीख लो कि इतने प्रैक्टिस कितनी बार की, पुरुषार्थ कितना किया, भगवान ने उनको थोड़ी टैलेंट दी थी, वो टैलेंट डेवलप करने के लिए उन्होंने परिश्रम क्या किया, वो प्रिंसिपल सीख लो। सी यू ओनली हैव 70-80 years ऑफ लाइफ, याद रखना। ये बातें मैं आपको कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ी कम महत्व की लगेगी। आफ्टर 20 years you will feel that this was the thing, the most important thing of my life. तो किसी को फॉलो करते करके उसने कुछ भी पोस्ट कर दिया, आप में घंटी बज जाती है और ओपन करके देख लेते हो। एनीथिंग दैट इज फ्री यू आर पेइंग बाय योर टाइम। आप बोलोगे कि ये सोशल मीडिया तो फ्री है, पर सोशल मीडिया फ्री है, तेरा टाइम थोड़ी फ्री है। एंड द कॉस्टलीस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज costliest thing. Why it is costliest? Because you cannot buy it. Anything that you can never buy is costliest. तो सोशल मीडिया फ्री है, तेरा टाइम थोड़ी फ्री है। और 1 मार्क से तू एग्जाम में रह गया, 5 मार्क से रह गया, तो जिसको तू फॉलो करता था पूरे साल भर तक, वो आके यहाँ चिट्ठी नहीं लिख देगा कि ये बेचारा ने बहुत समय मुझे दिया है। जरा उनको 1 मार्क दे दो तो वो क्लियर हो जाए, वो नहीं आने वाला है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा था कि ये इंटरनेट है, ये कंप्यूटर है, ये इट इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स। दैट वाज वे बैक इन 1996 in New York. Pramukh Swami Maharaj spontaneously, out of all his experience and wisdom, he said, if it is all used with disciplined discrimination, it is a blessing. And if you miss out on disciplined discrimination, it is a curse. मतलब आप विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे सोशल मीडिया का तो वो ब्लेसिंग है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन विवेक चूक गए तो वो अभिशाप है, मार देगा आपको। और वो फेक वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है, पता है ना? इट इज अ फेक वर्ल्ड। मैं क्यों फेक वर्ल्ड बोल रहा हूं? अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, एक भाई साहब को टिकट मिली थी एक पार्टी की ओर से और वे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। बिग बॉस में जा चुके थे। उनके इंस्टाग्राम पर 55 मिलियन फॉलोअर्स, कितने? 55 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। उनकी फेसबुक पे 40 मिलियन फॉलोअर्स। कितनी बड़ी बात बन सकती है? और वोट मिले 235। अब गूगल कर लेना, नाम भी मिल जाएगा, पार्टी भी मिल जाएगी। એટલે दिस इज अ फेक वर्ल्ड। तो ये मत सोचना कि मैंने कोई रील डाल दी। आप में से कोई यूट्यूबर होंगे, इंस्टा रील्स बनाते होंगे, मैंने रील डाल दी, ओह माय गॉड आई गॉट सी 500 ऑन डे 1। इट्स ऑल फेक। ये सभी फेक है। क्यों? आपको जब एक्सीडेंट होगा और आप हॉस्पिटल में होंगे तो ये 500 में से एक भी हॉस्पिटल आएगा नहीं। वो घर में जो 3 आप साथ रहते हैं ना, वही टिफिन लेके आएगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स डोंट कम टू चेक ऑन योर हेल्थ व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड नाउ, सो इट्स अ फेक वर्ल्ड। तो अगर वहां 2-5-15,000 लाइक मिली ना मिली, डोंट लेट इट इफेक्ट योर इमोशंस। ये यंग जनरेशन को कहना बहुत जरूरी है। डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क, योर परफॉर्मेंस, योर इंटेलिजेंस, नथिंग एल्स। एंड एक्चुअली नथिंग एल्स हेल्प्स यू। डू यू बिलीव इन दिस? अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क, apart from your own performance, apart from your own intelligence, nothing helps you. Do you believe this? तो इसी पे गौर रख के चलना, और आप कर सकते हो। निर्णय किया तो मैंने आपको 2 बातें की। एक, श्रद्धा से पुरुषार्थ करना है,
अपने आप में विश्वास रख के, टू बिलीविंग इन योर सेल्फ. एंड सेकेंड, minimize and minimize the social media time. Then you'll be able to enjoy the real life that God has gifted to us. कर्नाटका में 2018 में SSC के रिजल्ट्स आए. मोहम्मद कैफ नाम का एक लड़का, he scored 624 out of 625. Extraordinary result, isn't it? Yes. According to the Karnataka government, the 5 subjects were 100, that the question papers were out of 100, and 1 social sciences was like out of 125. So the aggregate was like 625, and he scored 624 out of 625. Excellent result, isn't it? Yes. हमारा ये रिजल्ट अगर भूल से आ जाए तो उसका तो झंडा बना के पूरे गांव में घूमते हैं, isn't it? मार्कशीट झंडे पे लगा है. मोहम्मद कैफ रिजेक्टेड द रिजल्ट. दिस इज नॉट माई रिजल्ट, आई विल नॉट टच इट. इफ इट इज मोहम्मद कैफ एट द टॉप, इट शुड बी 625 आउट ऑफ 625. चेक इट अगेन. स्टूडेंट की ये खुमारी होती है. He said, this is not my result. 624 out of 625, Karnataka state first. Not my result. If my name is at the top of the mark sheet, Mohammad Kaif, it should be 625 out of 625. Recheck my papers. और एक पेपर में जो 1 मार्क काटा था, 3 ऑब्जर्वर्स ने देखा, 3 एग्जामिनर्स ने देखा और पता चला कि नहीं, should be awarded the mark. So again the mark sheet was prepared 625 out of 625, and then he touched the mark sheet. Now this is my mark sheet. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे कि पढ़ना है तो प्रथम नंबर से ही पढ़ना है. उनका ये जीवन सिद्धांत रहा है. अभी जो हमारे गुरु हरिय महंत स्वामी महाराज, वे भी कहते हैं सभी विद्यार्थियों को जब वे बात करते हैं तब, कि ये पढ़ाई की आपकी उम्र है तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेना. It will all be the more good and better and professional degrees that you have in your career. It is all like diamonds and jewels in your crown. और शाइन करेगा. तो ये तीसरी बात मैंने आपको ये कही कि आप भी चाहे तो जहां भी हो वहां से आप आगे बढ़ सकते हो. Do you believe that a 60% guy can go for 70 and 70 can go for 80 and 80 can go for 90? Yes or no? हम सब कर सकते हैं. Give it a try. पूर्ण प्रयत्न करना तो हम कर सकते हैं. तो दिस इज, ये ज्ञानोत्सव है ना, ज्ञानोत्सव. तो ज्ञानोत्सव में सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है कि मुझे करना है, उसको करना है, उसको करना है, उसको करना है, नहीं, मुझे करना है. Constantly updating yourself, and we are all students lifetime. Even after 20 years of practice in your professional career, every day is a learning. Every new case study is a learning. New policies, new laws, you have to update yourself constantly, isn't it? So it is a lifetime process. The learning process is a lifetime one. You have to keep yourself updating. लेकिन ये पुरुषार्थ और ये प्राइड से हमारे संप्रदाय में हमारे सदगुरु वर्य संत कोठारी स्वामी इन मुंबई, टुडे इज 85 बट एज एनर्जेटिक एज लाइक यू एंड मी. When he was doing his engineering, he finished his engineering way back in 1960, textile engineering from VJTI, a very prestigious college at that time in Mumbai. उनका जीवन का एक प्रसंग मैं आपको कहूं. ये प्रसंग आपने जिंदगी में इस प्रकार का प्रसंग नहीं सुना होगा. आई चैलेंज एंड गारंटी. क्वेश्चन पेपर में हमें कई बार पूछा जाता है, वी आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड 5 क्वेश्चंस एंड देन यू आर आस्क्ड आंसर एनी 3. है ना? सभी सब्जेक्ट्स में हम पढ़ के आए हैं बचपन से. 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर एनी 3, या 3 पूछते हैं और बोलते हैं आंसर एनी 2. तो 5 पूछते हैं और बोलते हैं कि आंसर एनी 3, तो एक तो हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं, नंबर 4, क्योंकि फर्स्ट 3 में तो उसकी करना ही पड़ता है. नंबर 4 हमने ठीक लिख लिया, फिर ढूंढ लेते कौन सा लिख ले, चलो 2 नंबर का लिख लेते हैं.
और तीसरा ढूंढते ढूंढते तो तकलीफ पड़ती है 5 में से, तीसरा कि कौन सा आंसर दूं। हाँ यार हाँ। हमारे कोठारी स्वामी नंबर 1 से नंबर 5 ऑल द 5 क्वेश्चंस ही वुड आंसर और नीचे लिखते थे चेक एनी 3। ये दादागिरी किसकी देखी है? जब वे स्टूडेंट थे आपके जैसे। मैंने कहा ना कि ये प्रसंग आपने इस प्रकार का प्रसंग कभी नहीं सुना होगा। He answered all the 5 questions, never went for any options, and then he would write check any 3. आपको जो मर्जी आए वो 3 चेक करें। And he was a 95, 98, 99% ranker. तो हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट्स थे, हैं, भविष्य में रहेंगे कि हम अगर चाहें तो हम भी अच्छी तरक्की प्रगति कर सकते हैं। हमारी जो BAPS संस्था है वो 125 साल पहले बहुत छोटी संस्था थी, लेकिन हमारे गुरुवर्यों ने जबरदस्त और प्रचंड पुरुषार्थ किया। ज़्यादातर प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। आप यहाँ एक फैसिलिटी में बैठे हुए दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, ऐसी छोटी बड़ी 1300 संस्थाएं प्रमुख स्वामी महाराज ने अकेले 1 मैन शो, 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। भविष्य में आप स्टूडेंट लाइफ पूरी करके प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे और फिर प्रोफेशनल लाइफ पूरी करके मतलब 2-5 साल काम करके शायद आपको लगा कि आई विल ओपन अप माय ओन फर्म, आई वांट एन ऑफिस। एट दैट टाइम टू गेट एन ऑफिस वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, इट्स नॉट एन जोक। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, मंदिर एंड अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज सिंगल हैंडेडली बिल्ड इट and very efficiently on charity basis he administered it. Today our Guru Mahan Swami Maharaj became the Guru of this organization at the age of 83. Today he is 92. In the last 8 years he created 450 institutions of social service. आज हमारी संस्था में BAPS में हर 8वें दिन एक नई संस्था का उद्घाटन होता है। Every 8th day we inaugurate a hospital or a hostel or a school or a college or a community center or a sanskar kendra, a mandir or an akshardham. Every 8th day. अब मैं जब भी आपको बात कर रहा हूं, there are more than 70 projects all over the world in the pipeline in our organization. इसलिए BAPS हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट है एज एन NGO। ये बात मैंने आपको ऊर्जा देने के लिए की है कि भगवान ने हम सभी में बहुत शक्ति दी है। ओपन द लिड। आप लीड ओपन करेंगे, एनर्जीज, टैलेंट्स, कितनी इनर एनर्जीज और टैलेंट्स होती है वो बाहर आती है। भगवान ने इतनी शक्ति, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी एट द एज ऑफ 74 क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं। हाँ या ना? हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हम सभी कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू अनदर पार्ट। ये पढ़ाई से आप इंटेलिजेंट क्वोशंट डेवलप करेंगे, द IQ। इज यू थिंक रैशनली, यू वर्क इफेक्टिवली, you have a reasoning power, you can discuss, that is all your IQ. Then after you need to develop your emotional quotient, EQ. See, until the 90s, people felt that people with good IQs, they can work, they can create and they can earn. और बात भी सही थी। After the 90s, after the development of the Silicon Valley in San Jose in California and US, people felt that sometimes people with good intelligence definitely work hard and earn money, but people who are people friendly, who understand their own emotions, take care of their own emotions, who understand the emotions of the people around them, take care of their emotions, they are working better, they are producing better, they are earning better. So ये concept चालू हुआ emotional quotient का, where you are empathetic, where you understand your own emotions and the emotions of the people around you, and you work accordingly, and people can come together and create wonderful teams and work. Then after, at the turn of the millennium, they found that sometimes people with EQ
What EQ cannot do, people with some spiritual intelligence, they are able to do it. So above IQ it is EQ, above EQ it is SQ, spiritual quotient. वो क्वालिटीज होती है. ये बात जो अभी मैं करने जा रहा हूं वो आप स्टूडेंट के रूप में अभी आप हो, अब प्रोफेशनल फील्ड में नहीं आए हो, इसलिए अभी सिर्फ ये बात सुन के नोट कर लेना. This all will be very helpful to you in 1 year, 2 years or 3 years hence when you enter into the work field. तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती है? हम स्पिरिचुअलिटी की बात आती है सोच लेते हैं ये भगवान की बात है, ये स्वर्ग की बात है. नहीं, स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस. एक बहुत अच्छा पुस्तक आप सभी से मैं शेयर करना चाहूंगा. इफ यू हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन, यू मस्ट राइट इट डाउन. द टाइटल ऑफ दिस बुक एंड द ऑथर. I recommend to all the students to read it. ये पुस्तक आप पढ़ना, आपके जीवन की एक नई दिशा ये पुस्तक दे सकता है. The title of the book is Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. I repeat the title of the book, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, co-authored by a gentleman Ian Marshall and a lady Dana Zohar. ये दोनों ने co-author की है ये बुक और ये अद्भुत पुस्तक है. इसमें if you have these 8 qualities, you are a spiritually intelligent person and you can definitely guide people with intelligent quotient or emotional quotient. So vice versa, if you are a spiritual intelligent person, then you can have this, you have these 8 qualities. I'll not dwell into the details of these qualities. I'll just list it out for you. First is flexibility. Harvard University ने अभी definition बनाई intelligence की. After 8 years of research and survey, they have come to this words. What is the definition of intelligence? तो उन्होंने कहा flexibility to change is intelligence. From individual decisions to boardroom meetings to practically on the ground. If you possess that flexibility to change, that is called intelligence. Second, self-awareness. Where am I? What I am doing? What I am talking? Am I supposed to do what I am doing? Who are the people around me? Should I say this or not? If I say this today or do this today, what results, what outcomes can be after a few days, after a few weeks, after a few months? A person who is extremely self-aware, he never makes a private or a public mistake in his life. It's called self-awareness. जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का स्वधाम गमन हुआ, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में, हुजू सब बैठे थे. एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो करीबन 4 डेकेड्स 40 साल से पब्लिक लाइफ में थी, उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से प्रमुख स्वामी महाराज को देखते आया हूँ. उनकी 70 years of public life, he has expressed his opinions on national international issues and everything, but never ever his words, his opinions, his actions have created a controversy in the society. This is called self-awareness. तीसरी बात है an ability to face and use the suffering of life. ये spiritual intelligence है. An ability to face and use the suffering of life. आपको किसी ने गाली दी तो उसके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको गाली देने की भी जरूरत नहीं है. उस गाली का मैं कैसे मेरी तरक्की के लिए उपयोग कर सकूं वो सोचना है. A brick thrown at you, don't pick up that brick and throw back. A brick thrown at you, you must make it a stepping stone to go one step ahead or one step up. ये सिद्धांत महापुरुषों का है. मैंने 400 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, उसका ये सिद्धांत मैं आपको सिखाता हूं. You are young minds, you should know this high human values with which great personalities have lived and they have created for the benefit of people. महापुरुष कभी किसी के साथ झगड़ने नहीं गए, गाली दी तो गाली का भी उपयोग कर लेते हैं. हमारे कंट्री के, हमारे देश के जो मुख्य व्यक्ति उनमें ये नेक है,
कोई इनको गाली देते हैं, वो गाली का भी बड़े वोट बैंक में टर्न कर सकते हैं. दैट इज अ नेक. इट इज प्रोफेशनलिज्म. सिंपल. I tell it as professionalism. So an ability to face and use the suffering of life. Suffering आए लाइफ में तो रोना मत. Now take this statement today. If you don't remember any other thing in the talk, I think this is something that is a takeaway in your heart and mind. Suffering is necessary in life. Suffering is necessary in life. Why? Because the lessons that a suffering can teach you, your 20 years of academics and 20 years of professionalism cannot. जो बातें आपको दुख सिखा सकती है वो सफलता नहीं सिखा सकती. तो सफरिंग इज एसेंशियल इन लाइफ. तो डरना मत. एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. अब्राहम लिंकन 16 बार डिफीट हुए हैं, नॉन स्टॉप कॉन्जिक्यूटिवली. कितनी बार? 16 बार. तो 16 बार तक आपकी कारकिर्दी डिफीट में रहे एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट, तो अब्राहम लिंकन को याद करते करते हर साल एग्जाम देते रहना. On the 17th election, he won and became the president of United States. He lost 16 elections in a row. कोई भी व्यक्ति हार मान के डिप्रेशन में चला जाता है कि नहीं? इलेक्शन का रिजल्ट आया और पता चला कि आई एम डिफीटेड. वेरी नेक्स्ट मोमेंट मीटिंग करके ये इलेक्शन आ रहे तो उसके लिए चलो तैयारी करते हैं. दिस इज द स्पिरिट ऑफ सच पीपल. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने लंदन में मंदिर बनाया, लॉस एंजलिस में बड़ा अक्षरधाम तुल्य कैंपस बनाया, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बनाया. बहुत बाधाएं आई हैं, लीगल इश्यूज खड़े हुए हैं, आर्टिस्ट मतलब आर्टिसंस जो है उनके इश्यूज खड़े हुए हैं. रॉबिन्सविल अक्षरधाम में बड़ा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू मंदिर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और अभी आप सभी ने सुना BAPS हिंदू मंदिर इन अबू धाबी. सुना है उसका नाम? सुना है तो हाथ ऊंचा करें. हाँ, हम सभी ने सुना है. ये सभी प्रोजेक्ट में छोटी बड़ी तकलीफें आई हैं. ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे तो हो ही नहीं जाते. वी हैव फेस्ड इट, वी हैव ट्राइड टू ओवरकम इट. प्रॉब्लम्स जब आए तब बैठे शांति से, विथ ऑल पेशेंस, applying your all energies, all talents, all academics, all experiences, try to solve the problem. Simple. So भगवान के पास ये नहीं मांगा भगवान प्रॉब्लम ना आए, ये तो मांगेंगे तो भगवान के नहीं, वो तो मैंने डिजाइन किए है तेरे लिए, वो तो ऑलरेडी डिजाइन हो चुके हैं. यू नो द बिगेस्ट बैगर इन द वर्ल्ड, भगवान के पास जाके बोलता है भगवान यार पास कर दे कॉस्ट अकाउंटिंग में. भगवान को ये बोलना कि आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 95 लेकिन 93 प्रैक्टिकल लिखते देख लेना. तो भगवान को भी मजा आता है कि यार कोई जिगर वाला व्यक्ति आया आज. भीख मांगने क्या जाते हो भगवान के पास, जिगर लेके जाओ ना. An ability to face and use the suffering of life. फिर fourth quality of a spiritually intelligent person, an ability to inspire by vision. आप कुछ देखते हो, कुछ आपने देखा, कुछ सुना, and you get inspired. यार कुछ कर सकते हैं. मुंबई में मलाड में 2nd ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बस स्टॉप पे खड़ा था. सिटी बस में वो रोज स्कूल मतलब कॉलेज जाता था. वहां उसने एक दृश्य देखा. एक यंग मदर अपने छोटे बच्चा होगा 3-4-5 साल का, उसको स्कूटी पे लेके आई एंड शी वॉज गेटिंग लेट हरीडली. और वो पहुंची बस स्टॉप पे, वहां वो छोटे बच्चे की स्कूल बस उसी समय आई. मतलब अगर 1 मिनट लेट होती तो स्कूल बस चली जाती, फिर पेरेंट्स को ड्रॉप करना जाना पड़ता है. एंड शी वॉज लाइक टेलिंग द कंडक्टर सर वेरी सॉरी आई गॉट अ बिट लेट. और जल्दी से बच्चे को नीचे रखा, स्कूटी स्टैंड पे चढ़ाई और दौड़ के वो बच्चे को लेके सीधा दे दिया कंडक्टर को. कंडक्टर ने छोटे बच्चे को लेके सीट पे बिठा दिया. एंड शी वॉज लाइक एंशियस कि ये बैठ गया कि नहीं, मेरा लड़का बैठा उस सीट पे बैठा, बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ये 2nd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक यंग वुमन, एक यंग मदर को इस सुबह सुबह की जल्दी में देखा. हम उस जगह पे होते तो क्या विचार आता? चोखी देसी भाषा में वैल्यू उठू જોઈએ, जल्दी उठना चाहिए. नहीं, इसने क्या विचार? सी इंस्पायर्ड बाय विजन, कैन आई हेल्प दिस सिचुएशन?
This situation must be propping up in all the households where they have such small children. सुबह में उसको उठाना, तैयार करना. कल ही हमारे मंदिर में हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका छोटा लड़का है 3 साल का. तो उसकी मदर उसको स्कूल ड्रेस पहनाती है, 3-4 साल का है, तो वो रोने लगता है क्योंकि उसको पता चला कि ये ड्रेस पहना है, अब ये लोग मुझे स्कूल छोड़ के आएंगे. तो उसको गाड़ी में बिठा के घुमाने ले जाना पड़ता है सुबह में, और घुमा के फिर स्कूल के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं. माता पिता दोनों जाते हैं क्योंकि इसमें तो 2 चाहिए. और फिर उसको उठा के विंडो में से दिखा, देख तेरे जैसे सब स्टूडेंट्स, देख ये ड्रेस पहन के आए, तेरे पास भी ये ड्रेस है, पहनना है? हाँ सबने पहना है तो मैं भी पहन लेता हूँ. तो एवरी डे ही हैज टू बी ड्रेस्ड इन द कार इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट. एकदम छोटा बच्चा है, 3-4 साल का. मतलब ये छोटे बच्चे को सुबह में तैयार करना, स्कूल में भेजना, इट्स अ चैलेंज फॉर यंग मदर्स. ये सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखा कि ये सिचुएशन, कैन आई हेल्प द सिचुएशन? तो दिस इज स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन. डोंट कर्स द सिचुएशन, डोंट लाफ एट द सिचुएशन. सिचुएशन आप देखें, व्हाट कैन बी माई इनपुट, हाउ आई कैन बेटर द सिचुएशन. इसने एक ये लड़के ने, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया वेयर अ मोबाइल नंबर कैन बी स्टोर. तो मदर का मोबाइल नंबर स्टोर कर देते हैं. तो बस निकली तो उनके लास्ट 15 मिनट्स की अपडेट आती है कि नाउ द बस इज 13 मिनट्स अवे फ्रॉम योर बस स्टॉप वेयर यू ड्रॉप योर चाइल्ड फॉर द बस, स्कूल बस. नाउ इट इज 3 मिनट्स अवे, 1 मिनट अवे. तो दे गेट 15 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल टाइम अपडेट्स. लड़का बैठता है उनकी फिक्स सीट पे, तो वहां सेंसर कट करता है, मैसेज मिलता है कि ही इज सीटेड. ही एंटर्स द क्लासरूम, सेंसर कट होता है, मदर को मैसेज मिलता है ही हैज एंटर्ड द क्लासरूम. एकदम छोटे बच्चे के लिए, हमारे लिए करता है प्राइवेसी, करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है. ये तो एकदम छोटे बच्चे के लिए, जहाँ चिंतित रहते हैं माता पिता. अगर वो छोटे लड़के ने, टीचर ने कुछ पूछा और हाथ ऊंचा किया कि आई वांट टू आंसर, तो सेंसर कट होता है और माता को मैसेज, ही हैज रेज्ड हिज हैंड टू आंसर समथिंग. He introduced in a couple of schools in Mumbai and Bangalore. Introduced trial purpose में. अच्छा लगा. Few schools wanted to do it. ये तो थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसके पास कोई नेटवर्क सिस्टम कंपनी तो थी नहीं. A company in Silicon Valley, San Jose, came to know that such a software has been developed. इंडिया से अमेरिका में ज़्यादा ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की. And they contacted this boy and they asked him to sell. And this boy sold that software for $70 million. जिंदगी बन गई, हाँ या ना? नई ऑफिस 5 शहर में खुल गई, पूरे WIRC के सभी सिटी में खुल गई. और 5 कितने स्टेट है आपके? 5 स्टेट में एक ऑफिस खुल जाती है ना. $70 million today, 856, almost 570 crore rupees, 575 crore rupees. एक आइडिया, एक विजन. So keep your eyes open, keep your ears open, keep your heart open, keep your mind open. जो कुछ भी आप देखें, सुने, उसमें पॉजिटिविटी से विचार करने का प्रयत्न करना. Don't curse the situation, don't laugh at the situation. Do you believe that any situation in your life or any situation propping up around you has the potential to grow you? Yes. समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? Any situation that has come in your life or any situation that is propping up around you has the potential to grow you. Yes or no? Yes. तो ये एंगल हमेशा रखना. You will grow. तो ये चौथी बात थी. 5वीं बात है and an ability to be inspired by vision and ability to see connection between diverse things. 180 degree opposite degrees होती है यार, ये और ये में कुछ होता नहीं है. They can see a connection between the two. They can see a connection between the two. Elon Musk ने सोचा कि यार सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट तो है, स्टार लिंक इंटरनेट चालू करना है. क्रिएटेड. उसने सोचा पेट्रोल डीजल से क्यों गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं, टेस्ला बनाई. और अभी हम सैन फ्रांसिस्को गए थे 4 महीने पहले, ड्राइवरलेस कार में बैठे.
ड्राइवर ही नहीं था। पहले तो डर लगता है, आधे मिनट के लिए भूत चला रहा है। आप फीड कर दो आपका डेस्टिनेशन, परफेक्ट ड्राइविंग। 4 रास्ते पे इट रिस्पेक्ट्स द ट्रैफिक लाइट्स, इट रिस्पेक्ट्स द पुलिस, इट रिस्पेक्ट्स द टर्निंग, इट कैन ओवरटेक। फर्स्ट क्लास चलती है ड्राइवर्स कार। 25 मिनट रात को हम जो डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे लेके गई, परफेक्ट ड्राइविंग। और फिर हमने उतरते वक्त सोचा कि इसका और थोड़ा टेस्टिंग कर लें, तो उतरते वक्त वी केप्ट दी ग्लास विंडो ओपन। सब पैसेंजर उतर गए तो अंदर से रोबो ने आवाज दिया, प्लीज क्लोज द ग्लास विंडो। फिर नजदीक खड़े रहे, एक एकदम नजदीक था, जस्ट 1 इंच अवे फ्रॉम द कार्स बॉडी। इमीडिएटली कार शुरू नहीं हुई, प्लीज कीप 2 feet डिस्टेंस फ्रॉम द कार, नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग। क्या टेक्नोलॉजी! सोचा कि ये दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन हो सकते हैं? है। 6th thing, an ability to cause as little harm as possible. याद रखना, I'm now into the last 5 minutes of my talk. आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, आपका ही बुरा होगा। The world is round, it has no corners, so it does not have the place to keep your wrongs. आपने ऑफिस पॉलिटिक्स खेला, आपने किसी की कारकिर्दी, किसी का करियर, किसी का रिपोर्ट बिगाड़ने का प्रयत्न किया, आपका 2, 5, 10 साल में जरूर बिगड़ेगा। डोंट गो फॉर लेग पुलिंग। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जीना, ही इज ही, आई एम आई, ही इज वर्किंग हिज वे आउट, आई एम वर्किंग माई वे आउट, ही इज एंजॉइंग his hard work, his destiny, and his grace of God upon him. I will enjoy my hard work, my destiny, and my grace of God upon me. He is he, I am I. તમારે નેપેન સિરી રોડ પર બોમ્બેમાં કે પેડા રોડ ઉપર 2 BHK નો ફ્લેટ હોય, તમે રોજ અંતિલા સામે જોઈને ગેલેરીમાંથી રડો. બરોબર. Mukesh Ambani no cost, it's the costliest residence in the world, Antilia, where Mukesh Ambani lives. It is about $2.1 billion. About 17,000 crores નું એક ઘર છે, 17,000 કરોડનું. It is costlier than the Clarence House where King Charles lives in London. તમે 2 BHK में नेपेंसी रोड ऊपर रहते हो, आनंद करते हो अपने परिवार के साथ, और गैलरी में आके रोज अंतिला देख के अफसोस कर दिया, यार कब वहां जाऊंगा, कब ये बनेगा। तो जो है वो भी आनंद आप नहीं ले पाओगे। तो ये बात है कि किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। और ईर्ष्या का भाव है तो हमारे भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में एक अच्छी बात बताई, पॉजिटिव ईर्ष्या। हम ईर्ष्या में क्या करता है, वो गिरे, ये बहुत चीप विचार है। हाँ, जिनके प्रति ईर्ष्या भाव होता है ना, उसके बारे में क्या सोचता है, वो कोई तकलीफ में आ जाए, उसका कुछ बिगड़े, वो गिरे। अब जब तक वो न गिरे तब तक तुझे तो ईर्ष्या में ही रहना है, तू तो जलता रहेगा। पॉजिटिव ईर्ष्या वो वहां तक पहुंचाए पुरुषार्थ से, मैं भी पहुंचूंगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एनवी। ये भगवान स्वामीनारायण ने सिखाया है। इफ एट ऑल यू वांट टू एनवी, गो फॉर पॉजिटिव वन। एंड द लास्ट 2 क्वालिटीज, एन एबिलिटी टू आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस, एंड द 8th quality, an ability to work against a convention. These are the 8 qualities of a spiritually intelligent person. तो IQ आप डेवलप करते हो आपके टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक से, लाइब्रेरी से। EQ आप डेवलप करेंगे जब आप जन संपर्क में आएंगे, आफ्टर योर स्टूडेंट लाइफ। और SQ का प्रयत्न विचार से और एटीट्यूड से होता है। Better the SQ, the spiritual quotient or the spiritual intelligence, you will be able to, let me use the word, rule over people with high intelligence or people with high emotional quotient. ये सही मायने में सिद्धांत है। तो ये थोड़ी बातें आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की मैंने। आपके पास से देश को बहुत बड़ी अपेक्षा है। अपेक्षा में आप स्वर्ण उत्तीर्ण होना। देश और समाज ने आपके पास जो अपेक्षा रखी है कि वी वांट टू डेवलप, we want to see India developed country, and at least in before 2047
we are going to die, our generation. So it is your onus to make us, the earlier generation, to see India a developed country. और आप कर सकते हो. Onus lies on you. So repeat with me what I say and then we end. If I decide, I can. If I decide, I can. And I am deciding now that I will. Again I am deciding now that I will. I will make it happen. Thank you very much.